student. Today we will read the next chapter, second chapter of your 10th standard Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Okay, it is the extract. It is the extract of the speech which was given by Mr. Nelson Mandela when he has taken over the oath as a president of South Africa. Okay, तो नेल्सन मंडेला ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में स्पीच है नेल्सन मंडेला की जब वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनी थी. ओके, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले we should go through the background. We should learn the background. Okay, so South Africa was a country where there was a racial discrimination. Okay, system of apartheid. Apartheid एक सिस्टम था जिसमें racial mean to say रंग भेद का discrimination था. Okay, काले और गोरे में discrimination था. Apartheid is a political system. Mean there is a system. The government is following that system. White people were supremacy, they were ruling the country and they were discriminating the black people of their own land. उन्हीं के देश के रहने वाले काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था. इस सिस्टम को बोलते थे अपार्थाइड सिस्टम. That separate people according to their race. Race mean color. उनके कलर के हिसाब से, कलर रंग के हिसाब से. Can you say which of these country name below has such political system until very recently? So South Africa is the country. Okay, in that country racial discrimination was there. Have you heard of Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? तो नेल्सन मंडेला you might have read in history. हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. ओके, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी. ओके, and liberty of South African country. He has worked for their liberty of black people. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress, the party which he has formed, African National Congress, African National Congress, spent a lifetime fighting against apartheid. So उन्होंने lifetime fighting की थी against, mean to say he has opposed this system of apartheid and fight against him. ताकि उनके लोगों को न्याय बने, उन्होंने इनके अगेंस्ट में स्ट्रगल किया था. मंडेला हैज टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन. इसके लिए उसे 30 साल जेल में बिताने पड़े. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. 1994 में फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए. ओके, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. First black of a new nation means South Africa. In South Africa, first black president was elected in a democratic government. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom. So, what is Long Walk to Freedom? It is an autobiography of Nelson Mandela. Okay, in that the speech he has given when he was taking over as a president. Okay, when he was sworn in as the president, he has delivered a speech to his countrymen. So today we will discuss that speech. Okay, speak about the historical occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? तो inauguration का जो occasion था, क्या आप guess कर सकते हैं? तो that is a inauguration ceremony. Okay, check your guess with this news item from BBC on 10th March 1994. Okay, and this was covered in the news. Okay, British Broadcasting System. Okay, BBC. Okay, they have covered this. This is the extract of speech. Let's have it. Mandela became South Africa's first black president. It was the news. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 decades. More than 3 centuries, 3 centuries mean 300 years. 300 years. Years of white rule. Okay, so there were white people, they were in supremacy, they were ruling the country. So Nelson Mandela became the first black president after struggle of 300 years. Only his racial people of his own race, they were struggling. Okay, and he was the person who got the success after struggle of their own people of 300 years. 300 साल तक स्ट्रगल किया उन्हीं के लोगों ने. फिर उन्हें क्या मिला? इस मौका मिला कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना.
Mr. Mandela African National Congress ANC African National Congress Party won 250 सीट out of 400, तो 400 में से 252 सीटें उन्होंने जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो उनका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री, साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ओके, इन दैट नेल्सन मंडेला हैज won 250 seats. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre. Union Building means central government building. Union means to say central government. Central government building. Okay, amphitheatre is a open theatre. Amphitheatre is known as open theatre. Open theatre in Patron, in Pretoria is a name of place. Okay, Pretoria is a place. Attended by the politician, okay, the local politician of that country, dignitaries, important officers. Dignitary means important officer from more than 140 countries. Okay, so these politicians and dignitaries, not only from their own country, but they are from other country, guests of their country. Okay, other guests also, they have been invited. Okay, from 140 countries, so 140 देशों से गेस्ट इनवाइट थे अराउंड द वर्ल्ड. never again will this beautiful land experience the oppression. Okay, this was his statement. Okay, inverted commas में कि never again, कि अभी कभी नहीं. The beautiful land, उनका खूबसूरत देश है, experience करेगा, अनुभव करेगा. oppression मतलब दबा के रखना, दबाव. ऑपरेशन मतलब दबा के रखना, दबाना, कुचलना. ऑफ वन बाय अदर, एक दूसरे को दबा के रखने वाला जो सिस्टम है, एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति को, एक आदमी का दूसरे आदमी को, ये सिस्टम अभी हमारे देश में कभी नहीं देखने मिलेगा. ये इसने ओथ ली थी. सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था. जुबिलियंट सीन मतलब कि जुबिलियंट मीन ब्राइट सीन, जिसमें चारों तरफ खुशी का माहौल हो. On the street of Pretoria place का नाम है. Followed the ceremony with blacks, white and colored, celebrating. तो जब ये सेरेमनी में थे, ब्लैक पीपल भी थे, व्हाइट भी थे, सभी लोग इकट्ठे हुए थे. More than 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख से ज्यादा. मैन मीन टू से पीपल, मैन रिप्रेजेंट किए पीपल, वुमेन एंड चिल्ड्रन. अंडरस्टूड मतलब आदमी, औरत एंड चिल्ड्रन. Always sung and dance, वो सभी लोग enjoy कर रहे थे, गाना गा रहे थे. Understood? This was the scene. Okay, now the chapter start. Okay, it was brief introduction. Now we will read the chapter line by line. Okay, this is the first paragraph. 10th May dawn. 10th May dawn bright and clear. 10th May dawn mean the morning time, सुबह, सूर्यास्त. सूर्यास्त सुबह का टाइम, सूर्य निकलने का, सनराइज. ओके, dawn means sunrise का टाइम, dusk mean sunset. ओके, तो 10th May dawn सुबह, 10th मई की जो सुबह है ब्राइट मतलब खूबसूरत थी एंड क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरी थी. फॉर दिस पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, आई मीन नेल्सन मंडेला, ओके, आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged मतलब सराउंडेड बाय मीन घेरे हुए, घिरा हुआ, आप कह सकते घिरा हुआ. ओके, चारों तरफ से घिरा हुआ था. और प्लीजेंटली खुशी के साथ. ओके, प्लीजेंटली मतलब खुशी के साथ. besieged by dignitaries. ओके, डिग्निटरी होते हैं इंपॉर्टेंट. डिग्निटरी मतलब ऑफिसर्स या फेमस पर्सन. एंड वर्ल्ड लीडर, दुनिया भर के नेता. हु वर कमिंग की 10th मई की सुबह से. ओके, ब्राइट और क्लियर थी, खूब सुनहरी थी, सुंदर थी, साफ थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई मीन टू से नेल्सन मंडेला इज सेइंग, मैं,
हैड बीन प्लीजेंटली कि मैं खुशनुमा माहौल में बिसीज्ड बाय कि मुझे चारों तरफ से घेर रखा था किसने, डिग्निटरीज ने एंड वर्ल्ड लीडर ने, हु वर कमिंग जो आ रहे थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, वो मुझे विश करने आ रहे थे, पे देयर रिस्पेक्ट मीन विशिंग हिम बिकॉज़ ही इज टेकिंग ओवर एज द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बना था तो उसे विश करने आ रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले, मतलब कि इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले मुझे दुनिया भर के डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर वो मुझे घेर रखा था, मुझे विश करने आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी इनॉग्रेशन एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीकन सोइल, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, जहां पे ये इंटरनेशनल लीडर्स आए थे ऑन साउथ अफ्रीकन लैंड, हमारी धरती पे, सोइल मीन लैंड, हमारे देश में, कि हमारी धरती पे पहली बार इतना बड़ा इवेंट था जहां पर दुनिया भर के नेता आए थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, लवली मतलब खूबसूरत पत्थरों का बना हुआ, एम्फीथिएटर ओपन थिएटर, ऑलरेडी मैंने बताया था कि सेरेमनी कहां पे थी, सेरेमनी टुक प्लेस ऐसी जगह थी इन द लवली खूबसूरत सैंडस्टोन, एक जगह स्टैटिक पत्थरों का बना हुआ एम्फीथिएटर फॉर्म बाय, जो किसने बनाया था, यूनियन बिल्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग थी यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया प्लेस की जगह में, ये एम्फीथिएटर कहां पे था, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में था। ओके, वहां पे ये सेरेमनी हो रही थी। फॉर डिकेड, डिकेड मतलब 10 ईयर, दशक, ओके 10 ईयर, फॉर डिकेड दिस वर्ल्ड दिस हैड बीन इन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, के दशकों तक, प्लूरल में तो दशकों तक ये जो सीट थी, मतलब कि प्रेसिडेंट की जो सीट थी, वाइट सुप्रीमेसी, वाइट पीपल, वाइट जो गोरे लोग थे उन्हीं की सीट थी, एंड नाउ और अभी इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, और ये जो साइट है अभी रेनबो गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग का मतलब होता है इसमें व्हाइट ब्लैक सभी कम्युनिटी के लोग आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट ऑल कम्युनिटी पीपल सभी लोग आए थे, ऑफ डिफरेंट कलर, ओके जिनके अलग अलग कलर थे, एंड नेशन अलग अलग देशों के लोग भी आए हुए थे, ऑन फॉर द इंस्टॉलेशन, इसके लिए शुरुआत के लिए ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक, क्यों आए थे कि साउथ अफ्रीकन की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के गवर्नमेंट बन रही थी, ओके विदाउट एनी